ରତନ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୋଟିଭେସନର ସହିତ ଆଜି ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରୁନୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, which of the following is not a feature of the Indian Constitution? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫିଚର ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ୟେସ୍ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଫିଚର। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଫିଚର ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲେ। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନରେ ଆମକୁ ଦେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ୟେସ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଫିଚର। ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଫିଚର। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଫିଚର ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, which feature ensure equality before law in the Indian Constitution? ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ କେଉଁ ଫିଚର ଭିତରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଲ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଓକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ଯାଉଛି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କହିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଆମେ ବର କରିଛୁ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଓକେ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆମେ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆଣିଛୁ। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ନା ଆମେ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଣିଛେ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆମେ ଆଣିଛେ ୟୁଏସ୍ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଣିଛେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କହିଲା ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 14ରେ ରହିଛି। ଓକେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 14ରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲ ରହିଛି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେରୁ ବର କରାଯାଇଛି। ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲକୁ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ବର କରାହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା which feature ensures ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଛି। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଓକେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 14ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ, ନାହିଁ ଡିପିଏସ୍ପିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ, ଟୋଟାଲି ନୁହଁ। ଫୋର୍ଥରେ ଦେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 रे कौन देला ना द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम ओके सिंगल सिटीजनशिप ओके मने रखंतु सिटीजनशिप ओके सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिछि ओके सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिछि आर्टिकल केते रु केते मध्य रे रहिछि ना आर्टिकल 5 रु 11 मध्य रे सिटीजनशिप रही ओके तो इंडिया रे जो सिटीजनशिप अच्छी सेटा होची सिंगल सिटीजनशिप माने एंटायर कंट्री रे गोटे ही सिटीजनशिप रहिबो स्टेट रो कोनोसी सिटीजनशिप रहिबोनी केवल कंट्री रो सिटीजनशिप रहिबो ओके याकू कहंती सिंगल सिटीजनशिप आ मने रखंतु सिटीजनशिप बा सिंगल सिटीजनशिप को आमे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आनिछु ओके कोठु आमे आनिछ ना आमे आनिछे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम रु आमे सिंगल सिटीजनशिप को आनिछे ओके तो देखंतु ऑप्शन रे कोन देछि यूएसए टोटली रंग अछि ऑस्ट्रेलिया भी टोटली रंग अछि कनाडा भी टोटली रंग अछि करेक्ट आंसर हबो यूनाइटेड किंगडम ओके आमे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु सिंगल सिटीजनशिप को आनिछे एबे आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 4 को व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स कहिछि ओके फंडामेंटल राइट केउ पार्ट रे रहिछि देखंतु मु पूर्वरु आपण मान को कहली फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिछि जोटा की आर्टिकल 12 रु 35 मध्य रे रहिछि ओके फंडामेंटल राइट जोटा की पार्ट 3 रे रहिछि आउ आर्टिकल 12 रु 35 पर्यंत हमरो फंडामेंटल राइट रहिछि करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके तापर देखंतु which feature of the Indian Constitution makes it a blend of फेडराल एंड यूनिटरी फीचर्स कहला ओके तो देखंतु फेडराल एंड यूनिटरी फीचर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ओके आमे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहि परिबा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आमे कहि परिबानी काहे ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन होची पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल ओके तो ताको आमे कंप्लीटली रिजिड बोली कहि परिबानी पार्टली रिजिड आ पार्टली फ्लेक्सिबल ओके सेकेंड होची सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी होबनी ओके थर्ड होची फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रांग सेंटर एटा हबो करेक्ट आंसर ओके फोर्थ रे देची बाइकैमरल लेजिस्लेचर एटा मध्ये होबनी तो यार करेक्ट आंसर हबो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रांग सेंटर ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर एबे जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन पचारिला द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ओके पार्लियामेंटरी सिस्टम कहार मॉडल सहित समान अछि बा पार्लियामेंटरी सिस्टम को हमें को कंट्री रु बरो करिसंती सेटा हमको पचारिछि ओके पार्लियामेंटरी सिस्टम को हमें कोठो आनिछे पार्लियामेंटरी सिस्टम को हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके रु आनिछे दैट इज यूनाइटेड किंगडम रु हमें पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ पार्लियामेंटरी सिस्टम टा हमें यूनाइटेड किंगडम रु आनिछे दैट इज ब्रिटेन रु हमें पार्लियामेंटरी सिस्टम टा आनिछे ओके तो पार्लियामेंटरी सिस्टम टा ब्रिटेन रो मॉडल सहित सेम ओके काहे ना हमें ब्रिटेन रु आनिछे ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग बिकॉज ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बळे आम फोर फादर्स माने तयारी कले डिफरेंट देशरू डिफरेंट सोर्सेस गुडा को से माने कॉपी करिसंती ओके तो कोन कहला ना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए बैग बोरोइंग बिकॉज इट इज रिटन इन मेनी लैंग्वेज नाइ रंग अछि इट इज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एटा हबो करेक्ट आंसर ओके तो थर्ड रे देला इट हैज नो ओरिजिनलिटी एटा भी रंग अछि इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोली याको बैग ऑफ बोरोइंग्स कुआ जाउ नाही याको बैग ऑफ बोरोइंग्स कुआ जाउ छी काहे ना डिफरेंट कंट्री रु आमे बोरो करिछे आमो कॉन्स्टिट्यूशन को
ओके तो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर इट इज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8 होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन adopted from डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आमे केउ देशरू आनिछे सेटा हमको पचारुची देखंतु डीपीएसपी रो फुल फॉर्म होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके तो देखंतु डीपीएसपी आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत रही ओके डीपीएसपी आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत रही आ डीपीएसपी को आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इरिस ओके इरिस कॉन्स्टिट्यूशन रु आमे बर करिछे ओके आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आमे डीपीएसपी को बर करिछे ओके आ डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रही ओके डीपीएसपी जोटा को कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड रो बर करिछे डीपीएसपी जोटा कि आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत रही डीपीएसपी जहा कि पार्ट 4 रे रही तो यार करेक्ट आंसर हबो आयरलैंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्वेश्चन नंबर 9 रे कौन कहला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओके नो डाउट डिफरेंट कंट्री रु आमे डिफरेंट सोर्सेस को आनी छे फिर भी आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन होची वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओके कहीं देखंतु इट इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज कौन फंडामेंटल ड्यूटीज गोटे अच्छी फंडामेंटल राइट्स नहीं डीपीएसपी नहीं डिफरेंट सोर्स को आमे रखीचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो ऑप्शन ए रॉन्ग हबो ऑप्शन बी कहिची इट हैज मेनी शेड्यूल्स टोटल हमर 12टा शेड्यूल्स रहिची ओके 12टा शेड्यूल्स अछि बोली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हे गला कि नहीं एटा मध्ये रॉन्ग अछि इट डील्स विथ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एटा होची करेक्ट आंसर ओके डी ऑप्शन रे देला इट इंक्लूड्स द प्रियाम्बुल अछि बोली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हे गला कि एटा मध्ये रॉन्ग अछि ऑप्शन देखि कि आपण माने एलिमिनेशन करी सिखंतु ताहले पॉलिटी रे सिंगल क्वेश्चन भी आपण मानकर रॉन्ग होबनी एटा संदीप सर गारंटी दोछि तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इट डील्स विथ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 10 को ओके क्वेश्चन नंबर 10 हमको कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहला देखंतु रिजिड स्ट्रक्चर मु आपण मानको पूर्वरु कहली हम कॉन्स्टिट्यूशन होची पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल कंप्लीटली याको हमें रिजिड कहि परिबानी तो रिजिड स्ट्रक्चर भूल हबो डुअल सिटीजनशिप हम इंडिया रे नहीं हम इंडिया रे सिंगल सिटीजनशिप अछि दैट इज ओनली कंट्री रो सिटीजनशिप अछि स्टेट रो सिटीजनशिप नहीं जदि स्टेट रो सिटीजनशिप थांता तेबे ताको आमे डुअल सिटीजनशिप कहि थांते किंतु ओनली कंट्री रो सिटीजनशिप अछि सेते पे सिंगल सिटीजनशिप हम इंडिया रे रहिछि नेक्स्ट होछि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जोटा कि करेक्ट हो ओके इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट अटे ओके नेक्स्ट देछि हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम इंडिया रे नाही ओके पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम इंडिया रे रहिछि तो करेक्ट आंसर हो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एबे हमें जिबा क्वेश्चन नंबर 11 को देखंतु क्वेश्चन नंबर 11 रे हमर कोन पचारिला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेक्युलर स्टेट केउ आर्टिकल टा देछि सेटा हमको कहिछि ओके देखंतु सेक्युलर माने कोन सेक्युलर माने होछि द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी लैंग्वेज ओके द स्टेट डज नॉट promote officially any language as the state language okay माने स्टेट माने देखंतु एठारे स्टेट माने राज्य को बुझौनी एठारे स्टेट माने एंटायर इंडिया रो कंट्री टा को बुझौची ओके इंडिया आम कंट्री को स्टेट बोली मु कहूची ओके माने कंट्री फोर्स करबोनी कि तुमको एई लैंग्वेज ही फॉलो करबा को पड़िबो सेटा होची सेक्युलर स्टेट ओके सेक्युलर स्टेट माने होची कोन ना धर्म निरपेक्षता बा पंथ निरपेक्षता जाको ओडिया रे कुआ जाय ओके सेक्युलर माने होची आपन को इच्छा आपन माने जेउ रिलीजन को भी आपन मानकर रिलीजन भाबे
ग्रहण करें सेटा होची सेक्युलर। ओके सेक्युलर अर्थ होची धर्मनिरपेक्षता बा पंथ निरपेक्षता जार अर्थ कि आपण मानको इच्छा आपण माने जेउ रिलीजन को मध्य आपण मानकर रिलीजन बनै पारिबे। ओके तो सेक्युलर स्टेट को आर्टिकल रे माने कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल प्रोवाइड करूची देखंतु सेक्युलर सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक ए सबु कौनसी आर्टिकल रे नहीं ए सबु होची प्रियम्बल रो गोटे गोटे वर्ड। ओके प्रियम्बल रे सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ए सबु प्रियम्बल रे रहिची कौनसी आर्टिकल रे नहीं। ऑप्शन ए रे देखंतु आर्टिकल 15 देची आर्टिकल 15 रे तो कौन अछि ग्राउंड ऑफ माने आर्टिकल 15 रे कौन अछि रेस्ट कास्ट सेक्स रेस्ट कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ रे कौन सी डिस्क्रिमिनेशन हे परिबो नाही। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स बर्थ रिलीजन ए सब देछि। ओके रेसेस ए सब देछि आर्टिकल 15 रे सेक्स रिलीजन कास्ट ए सब रे डिस्क्रिमिनेशन हे परिबोनी सेटा देछि आर्टिकल 15 रे। तो आर्टिकल 15 रॉन्ग हबो। आर्टिकल 21 रे कोन देछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो आर्टिकल 21 मध्य रॉन्ग हबो। आर्टिकल 25 मध्य हमरो रॉन्ग हबो। तो करेक्ट आंसर हबो इट इज मेंशनड इन द प्रियम्बल। ओके प्रियम्बल रे मेंशन करा जायछि सेक्युलर बोली। ओके तो ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 12 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इंडिया ए सॉवरेन नेशन। ओके सॉवरेन नेशन फास्ट होची पार्लियामेंट सॉवरेन नेशन बोली कहू नहीं पार्लियामेंट रे नाही सॉवरेन बोली किछि सुप्रीम कोर्ट रे मध्य सॉवरेन बोली किछि नाही। प्रियम्बल करेक्ट आंसर हबो प्रियम्बल रे ही सॉवरेन वर्डटा अछि। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एसबु प्रियम्बल रे रहिछि। प्रियम्बल रो गोटे गोटे की वर्ड ओके होछि कोन ना सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक एसबु। ओके तो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रियम्बल। एबे हमें जिबा क्वेश्चन नंबर 13 को द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडॉप्टेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। ओके देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज आम कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला। ओके फंडामेंटल राइट्स जति समस्त को दिया जाउची ताहले फंडामेंटल ड्यूटीज बोली मध्य किछि दिया जिबा कथा प्रत्येक सिटीजन रो किछि ड्यूटी थिबा कथा सेटा इंदिरा गांधी कहिथिले। ओके सेति पई सोरन सिंह कमिटी गोटे बसिथिला। तो देखंतु कोन कहला द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा की आर्टिकल 51 ए रे रहिछि। ओके फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए रे रहिछि। तो देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज को केउ अमेंडमेंट रे ऐड करा गला करेक्ट आंसर हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे। ओके ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 14 को देखंतु व्हिच फीचर मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। मु पूर्वर कहि हस्छि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होछि पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल। तो यार करेक्ट आंसर होबो फंडामेंटल राइट अछि बोली एटा पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल होबो कि रॉन्ग कंप्लीटली रॉन्ग। ओके प्रियम्बल अछि बोली एटा पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल हैला कि नाही एटा मुझे रॉन्ग। अमेंडमेंट प्रोसीजर करेक्ट आंसर होबा अमेंडमेंट प्रोसीजर। ओके कहीं ना अमेंडमेंट करी जेहेतु हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट हेबो। ओके अमेंडमेंट माने देखंतु अमेंडमेंट एते इजी नुहे चाहिए अमेंडमेंट करी हबो किंतु एमती नुहे कि जार इच्छा हला जेते बळे अमेंडमेंट करी देबो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए अमेंडमेंट करी हबो बट तार गोटे लेंदी प्रोसेसटा रहिछि। ओके आर्टिकल 368 आपण मान को जेते बळे मु पढेबी से टाइम रे आपण मान जानिबे। ओके अमेंडमेंट प्रोसीजर पई आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल को जाउछि। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 15 को व्हिच फीचर बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट इन इंडिया। ओके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ फीचरटा इंडिया रे रहिछि कैबिनेट सिस्टम कंप्लीटली रॉन्ग। फंडामेंटल राइट्स हबो करेक्ट आंसर जोटा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए रो आनिछे। ओके इमरजेंसी प्रोविजन मध्य रॉन्ग हबो
डीपीएसपी तो आम इरिश कन्स्टिट्यूशन रू आनीचे तो करेक्ट आंसर हम फंडामेंटल राइट्स ओके जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे देछि। एबे आम जीवा क्वेश्चन नंबर 16 को 16 रे हमर कोन देछि ना which of these is not a federal feature of the Indian Constitution कहला ओके फेडरल फीचर कोटा नुहे सेटा हमको कहला ओके बाइकैमेरालिज्म ओके बाइकैमेरालिज्म तो गोटे फेडरल फीचर नुहे बाइकैमेरालिज्म होची गोटे यूनिटरी फीचर ओके इंडिपेंडेंस जुडिशियरी मध्ये गोटे यूनिटरी फीचर डिवीजन ऑफ पावर मध्ये गोटे यूनिटरी फीचर ओके यूनिटरी फीचर माने कोन ना स्टेट को किछि पावर दोथबो ओके फेडरल फीचर माने स्टेट रो पावर को झिकुथबो तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रांग सेंटर। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 17 को व्हिच बॉडी रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके सेंटर आ स्टेट रो डिस्प्यूट को के सॉल्व करे सेटा हमको कहिछि तो यार करेक्ट आंसर हो सुप्रीम कोर्ट ओके ऑप्शन ए लोकसभा देछि रंग अछि ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट देछि करेक्ट हो। एबे हम जिबा the feature of judicial review is taken from judicial review रो feature को आमे केउ देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो बर करिछे करेक्ट आंसर हबो यूएसए रो आमे बर करिछे ओके ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 रे देला which part of the constitution deals with emergency provision ओके emergency provision केउ इमरजेंसी प्रोविजन टा क्यों पार्ट रे रही सेटा हमको कहला मन रखंतु इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 रे रही ओके इमरजेंसी प्रोविजन टा पार्ट 18 रे रही आ गोटे कथा मन रखंतु नेशनल इमरजेंसी रही आर्टिकल नंबर 352 रे स्टेट इमरजेंसी रही आर्टिकल नंबर 356 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी रही आर्टिकल 360 रे एई तीनोटी आपण माने मन रखंतु काम दबो तो यार करेक्ट आंसर हबो पार्ट 18 ओके तापर देखंतु हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट ओके तो यही स्टेटमेंटा किए कही ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कही तो यार करेक्ट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दैट इज ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। तो आज आम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 20टा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कले ए सबू को आपण माने भल भाव में पढ़ंतु एग्जाम रे निश्चित क्वेश्चन आसीबो मु जानिछि मु जोटा पढ़ेली ता बाहर किछि क्वेश्चन आसीबो नाही ओके आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानकु हेल्पफुल हेतिबो जदि भल लागिछि लाइक करंतु सांग मानकु शेयर करंतु आ चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु रहिली धन्यवाद।